Hey guys, so today I will show you today how my process of using different kind of pencil for the different condition over 7 year. हाइपर रियलिस्ट ड्राइंग के लिए मैं कौन कौन से टूल्स की एड यूज़ करता हूँ, कौन से पेंसिल यूज़ करता हूँ, कौन से इरेजर यूज़ करता हूँ, ये सब मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ. तो वीडियो बनने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर यू विल लव इट. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. So first of all I took A3 Canson 224 GSM ड्राइंग पेपर. इस पेपर की खासियत ये है कि इस पेपर पे ड्राइंग करने के लिए काफ़ी मज़ा आता है. इसके स्मूथ टेक्सचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं जो पेंसिल इन पर यूज़ करने जा रहा हूँ उनकी तो बात ही क्या करना है, ये तो अपने आप में बेहतरीन है. ओके, सो आई ड्रीव दिस आउटलाइन स्केच. एज यू कैन सी आपको काफ़ी बारीकी के साथ और केयरफुली के साथ स्केच को ड्रॉ करना है. हम इसमें साउथ इंडियन एक्टर रश्मिका मंडाना का हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने जा रहे हैं. I grab a brush to graphic pencil for this drawing. I took a H, 2H, HB, 2B, 3B and 5B पेंसिल. इन सारी सेट्स की पेंसिल हमें बेस लेयर में काफ़ी हेल्प करने वाली है. Out of all these pencil, I took a 6B first because you have to fill the profile of the eyeballs. Then I grab 3B pencil for this iris. I'm gonna use a H for the sclera. And then add some darker shade in the lower eyelid and upper eyelid. शार्प ब्लेंडिंग के लिए मैं इसमें पेपर स्टम्प का यूज़ करने जा रहा हूँ और हमने जो डार्क शेड्स लोअर आईलिड और अपर आईलिड में ऐड किया था उन्हें ब्लेंड करने के लिए हमें स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की ज़रूरत होगी. Then I grab 4B pencil for the second layer of this iris. I'm gonna add skin tone as a graphic powder. You will require bigger brush for that. जहाँ जहाँ डार्क शैडो पोर्शन है वहाँ हमें ग्राफिक पाउडर को ऐड करना है. आप चाहे तो 2B पेंसिल से स्टार्ट कर सकते हो. Okay, moving on to this nose portion and add the darker shade in the lower portion. Along with this right side, then use a dry brush to blend this layer. But make sure it doesn't affect this middle portion of the nose. आईब्रोज में फर्स्ट लेयर ऐड करते हुए लेफ्ट आई में लोअर आईलेट के नीचे स्किन रिंकल को डार्क करना है ताकि पोर्ट्रेट में रियलिस्टिक फील आए. ओके, इट्स टाइम टू ऐड बेस लेयर ऑन टीथ विथ HB पेंसिल. स्मॉल साइज पेपर स्टम्प और ब्रश से हमें इस बेस लेयर को ब्लेंड करना है. इसको मोर प्रीमिनेंट लुक में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाईलाइट को ऐड करना होगा. You can also add this type of small dots and texture in this portion of the eye. आप इसमें जेल रोल पेन भी यूज़ कर सकते हो. And we have to do same technique in the teeth areas. माउथ में डार्क एरिया में डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हमें एक को डार्क शेड ऐड करना होगा ताकि टीथ में डायमेंशन क्रिएट हो और टीथ हाईलाइट के साथ बाहर आए. Okay, I'm gonna grab this 3B pencil and start shading this hair shadow. यहाँ भी मैं ग्राफिक पाउडर ही यूज़ कर रहा हूँ लेकिन हमें डार्क टू लाइट की तरफ जाना है. इसके लिए हमें लाइट पोर्शन को लाइट ही रखना है. Start from both the corners and join the shade in the middle, just like this. And you can also use the sharp tips of your pencil to add some darker shades where required. And also use the 8B pencil for this darker shade if you want. I'm gonna repeat the same process for all these upper dark hair portion. इन सारे शेड को स्मूथली ब्लेंड करने के लिए हमें टिश्यू पेपर की हेल्प लेनी होगी. टिश्यू पेपर इस लेयर को अच्छी तरह ब्लेंड कर देगा. अब आप डार्क और शार्प हेयर्स को क्रिएट करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो. And you can also use the Tombow mono eraser or electric eraser in between to add the highlight where required. Okay, I grab 5B pencil for the eyebrows. You can use a mechanical pencil for any sharp tip pencil and add the darker hair along the highlight portion. And also add the base layer on the lower lips and blend it. Now use this electric eraser and add highlights in light source areas below the lower lips. Okay, now I grab 5B pencil and add the little vertical lines on lips, just like this.
And here shading process is really simple here. Just add some shade here with 3B pencil first and then use 6B to darken portion, and don't forget to blend all these dark portion and add some more dark shade if you want. And in the end you can add the highlights using an electric eraser and blend them lightly to get a perfectly smooth yet. Now I will use a lines against white, and its silhouette, it's suggesting its silhouette again its background, but you will notice that when it's get over into has, it's now white, and so that contrast is really important, and there are very few time against that. We are going to end up leaving lines just like this. हेयर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तभी लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा। अदरवाइज़ हमारी लाइन दूसरी लाइंस में ओवरलैप होंगी तो कॉन्ट्रास्ट में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए पेंसिल ग्रिप में हैंड होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये तभी मुमकिन है जब आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अच्छे स्केच बनाइए, ड्रॉ करिए और मुझे टैग करिए। एंड इन द एंड यू कैन ऐड हाईलाइट्स यूजिंग अ इरेजर। अच्छा, आप इसमें जेल रोल पेन भी यूज़ कर सकते हो, इससे हाईलाइटेड हेयर्स को ड्रॉ करना और भी सरल हो जाता है। अगर आप बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक इरेजर यूज कर रहे हो तो आपकी लाइंस थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इरेजर राउंड शेप में स्पिन होता है। जैसे आप इरेजर को पेपर पे रखते हो, वो स्पिन होते हुए डायरेक्शन दिशा छोड़ सकता है। इसे चलाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है, इतना भी मुश्किल नहीं, आप आसानी से सीख जाओगे। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, डोंट वरी। Okay, now I grab 3B pencil to add neck shadow portion, which is really simple and easier than the other portion. You just have to fill it with lighter base layer first, and then use a 4B, 5B and to add the second dark layer, and then blend it. And you can use 2B pencil and add the skin texture of 4 in the cheek areas. If you add the second dark layer on cheek, you will get awesome 3 dimension. ओके, नाउ आई ग्रैब 8B टू ऐड द डार्क नेकलेस थ्रेड। ये नेकलेस काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं। नेकलेस में जो स्टील बॉल है उन्हें हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ इलेक्ट्रिक इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो इट्स टाइम टू ऐड द eyelesses and I'm gonna grab steel pencil fill to add this basic outline for the eyelashes. ईयरिंग के लिए आप 5B या 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ध्यान दें कि आपकी पेंसिल की टिप्स शार्प होनी चाहिए, क्योंकि ईयरिंग में काफ़ी बारीकी के साथ वर्क है, और उस वर्क को रिमेन रखने के लिए हमारे पास एक शार्प टिप्स वाली पेंसिल हमेशा रहनी चाहिए। Now the sari is peach red, but before filling with the darker cloth wrinkle shade, but make sure this cloth wrinkle has require for the light shade. और वाइट फ्लावर का कजरा बनाना काफ़ी आसान है, इसके लिए मैं अप्सरा का मैकेनो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। है ना काफ़ी आसान। और भी चीज़ें मैं आपके लिए आसान कर सकता हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो। ओके, सिंगल हेयर्स के लिए मैं यहाँ मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं एक एक हेयर्स को हाईलाइट कर सकूँ। इससे हेयर्स में काफ़ी रियलिस्टिक लुक आ जाता है। ओके, तो तैयार है हमारा हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग। So that's it for today, guys. I hope you had enjoyed this tutorial and learned something from it. So if you liked this drawing, then please give it a like and write down your valuable important thoughts on comment section. And if you are not subscribed to my channel, then please consider subscribing my channel also. It will really help me to stay motivated and create more content like this. And also follow me on Instagram for more tips, tricks and behind the scene content. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.